بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جنرل نے کہا، فرحاد صاحب اطمینان رکھیں، اب مقامی حکومت پر ہمارا دباؤ پڑے گا۔ سوئٹزرلینڈ سے امریکہ ہزاروں میل دور ہے اور ہم پڑوس میں ہیں۔ یہاں کے حکمرانوں کو ہماری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم نے کھانے کے بعد کافی کا آرڈر دیا۔ پھر میں ایک مسلح شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ تعداد میں 12 ہیں۔ ان میں سے 6 ڈائننگ ہال میں آئے تھے، 3 کمار خانے میں گئے تھے اور باقی 3 ہمیں گارڈن میں تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اس شخص کو اپنے ساتھی کے ساتھ بولنے پر مجبور کیا۔ پھر اس کے ساتھی نے اپنے دوسرے اور تیسرے ساتھیوں سے باتیں کی۔ میں ایک ایک کے دماغ میں پہنچنے لگا۔ جب 4 دشمن میرے قابو میں آ گئے تو میں نے ایک کے ذریعے ان کے سرغنہ کے بازو پر گولی ماری۔ گارڈن میں پھر بھگدڑ شروع ہو گئی۔ میں نے سرغنہ کے اندر پہنچ کر کہا، تم نے چیلنج کیا تھا، میں تمہاری کھوپڑی میں آ گیا ہوں۔ دیکھو، تمہارا ایک ساتھی ادھر سے آ رہا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے تم گولی مار دو۔ وہ کبھی ایسا نہ کرتا مگر میں نے مجبور کر دیا۔ اس نے بے اختیار گولی چلائی، پھر گھوم کر دوسرے ساتھی کو بھی گولی مار دی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے۔ بھاگنے والوں میں 2 اور گولیاں کھا کر حرام موت مر گئے۔ پھر میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنے 4 ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا، پھر چیخ کر بولا، باس، کیا تم میرے دماغ میں نہیں ہو؟ تم نے کہا تھا کہ فرحاد میری کسی دماغی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تم کہاں ہو؟ وہ اپنے بازو کے زخم کی تکلیف سے کراہنے لگا۔ پھر اس کے دماغ میں کسی نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں کمار خانے کی طرف گیا تھا، اتنی دیر میں تم بیکار ہو گئے۔ میرے لیے اتنا بہت ہے کہ یہاں فرحاد کی موجودگی ثابت ہو گئی ہے۔ میں نے سونیا کو ایک نئے خیال خوانی کرنے والے کے بارے میں بتایا۔ سونیا اٹھ کر بولی، ہمارا ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ دشمن ہنی مون والے جوڑے کو پہچان لیں گے، مجھ سے رابطہ کرتے رہنا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سلمان، سلطانہ اور لیلا کو بلایا، انہیں مختصر حالات بتا کر کہا، میں نے ایک ہی خیال خوانی کرنے والے کی آواز سنی ہے، یہاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جنرل یہاں ہمارے خلاف پوری قوت لگا دے گا۔ میں جن مسلح افراد تک پہنچ گیا تھا وہاں لیلا اور سلطانہ کو پہنچا دیا۔ سلمان کو پولیس کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں لے گیا اور اس سے کہا، مقامی حکمرانوں کی موت کا وقت مقرر کر دو۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر جنرل کے خیال خوانی کرنے والے نے ہمیں اپنے دماغ میں آنے نہ دیا تو یہاں کا کوئی حاکم اور اعلیٰ عہدیدار صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ فائرنگ کے باعث جو عورتیں بھاگ رہی تھیں ان میں بچوں والیاں بھی تھیں۔ سونیا نے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، پھر بھاگتی ہوئی کلب کے باہر آ گئی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے مسلح افراد ایسی عورتوں کو روک رہے تھے جو تنہا تھیں یا اپنے کسی مرد کے ساتھ ہوتی تھیں۔ بچے والیوں کے متعلق خیال یہ تھا کہ ان میں سونیا نہیں ہوگی۔ سونیا نے باہر آ کر گود کے بچے کو اس عورت کے حوالے کیا جس کے پاس پہلے ہی 2 بچے تھے، یعنی وہ 3 بچوں والی ماں تھی۔ سونیا نے تیزی سے کار میں آ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر ڈرائیو کرتی ہوئی امیگریشن کے دفتر میں پہنچی۔ رات کو دفتر کے دروازے بند تھے۔ ایک چوکیدار تھا۔ سونیا نے اس کی گردن دبوچ لی، اسے بے ہوش کر کے ایک تاریک گوشے میں ڈال دیا، پھر اس کی گن لے کر دروازے کے تالے کو توڑا، اسے کھول کر تیزی سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ راستے میں جتنے بھی دروازے آئے وہ سب کے تالے توڑتی ہوئی اس دفتری کمرے میں آئی جہاں دوسرے ملکوں سے آنے والوں کا ریکارڈ رکھا ہوتا تھا۔ سونیا صرف ان ناموں اور چہروں کو پہچاننے آئی تھی جو 24 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیل سے آئے تھے۔ ان لوگوں کے ویزے کی دوہری کاپیاں موجود تھیں۔ ان کاپیوں میں ان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ وہاں ایسے 8 افراد کے ویزے آئے ہوئے تھے جو واشنگٹن سے آئے تھے۔ پھر سونیا نے 48 گھنٹوں کے اندر آنے والوں کے کاغذات دیکھے۔ واشنگٹن، اٹلانٹا اور نیو یارک سے آنے والے 6 افراد اور سامنے آئے۔ اس طرح 14 افراد کے کاغذات اور تصاویر مل گئیں۔ اگر یہ 14 افراد چہرے بدل کر آئے تھے اور وہ بدلے ہوئے چہروں کی تصاویر ہوں گی تب بھی انہیں واپس جانے کے لیے وہی چہرے بنائے رکھنے کی ضرورت ہوتی۔ وہ چہرے بدل نہیں سکتے تھے۔ بدلنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انہیں نئے سرے سے پاسپورٹ اور ویزے بنوانے پڑتے۔ بس اسی لیے دشمن سونیا کے نام سے اپنے کان پکڑتے تھے۔ وہ سب سے پہلے فرار کے راستے بند کر دیتی تھی، دشمنوں میں پہنچ کر انہیں ہلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ امیگریشن کی ریکارڈز میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 14 افراد کن ہوٹلز اور کاٹیجز میں رہیں گے۔ وہ دفتر سے باہر آئی، پھر کار میں بیٹھ کر ایک کاٹیج کے قریب آئی۔ کار سے اتر کر اس نے کاٹیج کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے گراہٹ سنائی دی۔ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، جاؤ، سونیا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दरवाज़ा खोलो। चंद सेकंड के बाद दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाले का एक हाथ जेब में था और जाहिर कर रहा था कि जेब में पिस्टल या रिवॉल्वर है। सोनिया ने अपने साथ लाए हुए कागजात को दिखाते हुए बोला, मुझे अपना नाम बताओ। उसने नागवारी से कहा, हेनरी वॉरिच। लेकिन ये कौन सा वक्त है आने का? रात के 11 बजे हैं। सोनिया ने अचानक ही उसके पेट में घूंसा मारा। वो अपनी जेब से हथियार ना निकाल सका। बड़ा ज़बरदस्त घूंसा था। दूसरा मुक्का पड़ा तो वो कराहते हुए सीधा हो गया। जेब में डला हुआ हाथ जेब से बाहर आ गया। तीसरा घूंसा फिर पेट पर पड़ा। वो तकलीफ की शिद्दत से गिर पड़ा। ये समझ में आ गया कि वो कोई फाइटर नहीं है। सोनिया ने उसे 2-4 ठोकरें मारी, फिर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी गर्दन पर पैर रख कर बोली, तुम फाइटर नहीं हो। तुम्हारे जनरल ने हमारे मुकाबले पर 2 तरह के गुंडे भेजे हैं, कुछ जो फाइटर हैं और हथियारों को इस्तेमाल करना जानते हैं, 2 और टेलीपैथी का इल्म रखते हैं और छुपकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सोनिया ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उठाया, उसे बिस्तर पर धक्का देकर गिराया। बिस्तर के सरहाने फलों की टोकरी पर चाकू रखा हुआ था। वो चाकू उठाकर बोली, इकरार ना करो, थोड़ी देर बाद फरहाद तुम्हारे अंदर आएगा, तुम सांस नहीं रोक सकोगे, अपनी असलियत नहीं छुपा सकोगे। उसने चाकू की नोक को उसकी रान पर रखा, फिर लहू की एक गहरी लकीर खींच दी। उसके हलक से एक चीख निकली। वो दरवाजे पर गई, फिर बोली, जख्म गहरा है मगर तुम जिंदा रहोगे और फरहाद का इंतज़ार करते रहोगे। उसने उससे ताल्लुक़ रखने वाला वीज़ा निकाला और उसे दरवाजे पर रखकर उस पर चाकू पेवस्त कर दिया। वो कागज़ नोटिस पेपर की तरह दरवाजे से लग गया। यह है तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारा शनाख्ती कागज़। आज के बाद तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं रहेगी। वो कार में आकर बैठ गई। दूसरे कॉटेज के सामने पहुंची। उस कॉटेज के अंदर तारीकी थी। बार बार दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं आया। इससे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कोई फाइटर रहता है, क्योंकि तमाम फाइटर मुकाबले के लिए बाहर निकले हुए थे। सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले अपने कमरों में बैठे उन फाइटरों को गाइड कर रहे थे। उसने एक होटल के कमरे में पहुंचकर कॉल बेल के बटन को दबा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। एक शख्स ने कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही सोनिया ने उसे एक लात मारी। वो लुढ़खड़ाता हुआ पीछे गया। अंदर 2 बॉडी बिल्डर जवान थे। वो उछलकर खड़े हो गए। सोनिया ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ठाएं ठाएं गोलियां चलाईं। दोनों बॉडी बिल्डर जख्मी होकर फर्श पर तड़पने लगे। तीसरी गोली तीसरे शख्स के बाजू में लगी। वो चीख मारकर एक सोफे पर गिर पड़ा। सोनिया ने कहा, मैं लड़ने और ताकत का मुजाहरा करने में वक्त ज़ाया नहीं करती। एक ने तकलीफ से कराहते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमारा कसूर क्या है? वो एक वीज़ा सोफे के पास फेंकते हुए बोली, ये तुम्हारी शनाख्त है, बाकी फरहाद तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी असलियत मालूम करेगा। एक बॉडी बिल्डर फर्श पर रेंगता हुआ अपने हथियार तक पहुंचना चाहता था। सोनिया ने उसे ठोकर मारी। उसका भरा हुआ रिवॉल्वर बिस्तर पर से उठाया, पहला रिवॉल्वर फेंक दिया। होटल में फायरिंग की आवाज़ों ने हलचल मचा दी थी। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई तो दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर 4 सिपाहियों के साथ आ रहा था। होटल मैनेजर भी साथ था। इससे पहले कि अफसर अपना रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालता, सोनिया ने उसे निशाने पर रखते हुए कहा, ज़रा भी हरकत हुई तो गोली मार दूंगी। सबने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया। वो बोली, दूसरी तरफ घूम जाओ। वो दूसरी तरफ घूम गए। सोनिया ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, 12वीं मंजिल के 1212 कमरे में चलो। वो उनके साथ लिफ्ट में आई, फिर 12वीं मंजिल पर 1212 नंबर के दरवाजे पर पहुंची। पुलिस अफसर से बोली, दरवाज़ा खुलवाओ। उसने कॉल बेल का बटन दबाया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला पुलिस को देखकर मुतमईन हुआ। सोनिया ने उसका वीज़ा उसकी तरफ फेंकते हुए पूछा, क्या तुम फरहाद को अपने दिमाग में आने दोगे? वो चौंक कर बोला, तुम कौन हो? सोनिया ने उसके बाजू में गोली मारते हुए कहा, मैं आधी मौत हूँ, मुकम्मल मौत के लिए मेरे हनीमून मनाने वाले का इंतज़ार करो। वो तेज़ी से चलती हुई लिफ्ट में आ गई, फिर नीचे जाने लगी। मैं क्लब में था। मेरी मालूमात के मुताबिक क्लब में 12 अफराद हमें घेरने आए थे। उनमें से एक ख्याल ख्वानी करने वाला था। एक सरगना को मैंने ज़ख्मी करके बेकार कर दिया था। 4 मारे गए थे, बाकी छुपते फिर रहे थे। उनका टेलीपैथी जानने वाला उन्हें समझा रहा था, किसी तरह फरहाद को पहचानने की कोशिश करो और जब तक वो पहचाना ना जाए, कोई सामने ना आए, वो तुम्हारे ही साथियों के ज़रिए तुम्हें हलाक कर रहा है। छुपने के लिए ज़रूरी था कि वो हथियार फेंक देते, क्योंकि मैं उन्हें हथियारों के ज़रिए पहचान रहा था। जब ख़तरा कहीं से भी पेश आता हो तो कोई अपना हथियार नहीं फेंकता, उन हथियारों को अपना आखिरी और मजबूत सहारा समझता है। 4 दुश्मनों के दिमाग मेरी मुट्ठी में थे। मैं उनके ज़रिए और 2 दुश्मनों के अंदर पहुंच गया।
फिर वो जहां जहां छुपे हुए थे वहां से उन्हें निकलने पर मजबूर किया। उसी वक्त दूसरी पुलिस पार्टी आ गई थी और उन्हें हथियार फेंकने का हुक्म दे रही थी। शायद फ्रांस की हुकूमत का दबाव बढ़ गया था और वो मुसल्लह अफराद को मजीद रियायत नहीं दे सकते थे, लेकिन हमने तो तकरीबन खेल ख़त्म कर दिया था। जो बाकी रह गया था उसे भी मैंने पूरा कर दिया। तमाम मुसल्लह दुश्मनों को एक दूसरे पर गोलियां बरसाने पर मजबूर किया। पुलिस अफसर चीख रहा था, उन्हें फायरिंग से मना कर रहा था, उन्हें गोलियां मारने की धमकियां दे रहा था, लेकिन जो खुद ही एक दूसरे को गोलियां मार रहे हों वो भला धमकियों से कहाँ रुकते। ज़रा सी देर में मैदान साफ हो गया। आखिरी दुश्मन जो रह गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पहले अपने जख्मी सरगना को गोली मारी, फिर खुदकशी कर ली। पुलिस वाले दम बखुद रह गए। शायद उन्होंने मौत का ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा था। उसी वक्त सोनिया आ गई। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में कागजात थे। उसने मुझे कागजात देते हुए कहा, इन कागजात और तस्वीर को देखो और बताओ कितने जहन्नम में गए और कितने बाकी रह गए। वहाँ सरगना समेत 11 लाशें थीं और उन 11 के वीज़ा और तस्वीर मेरे हाथों में थीं। मैंने 12वां वीज़ा सोनिया को दिखाकर कहा, सिर्फ ये शख्स रह गया है और वो यहीं होगा। सोनिया ने पुलिस अफसर से कहा, इस शख्स को तलाश करो वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसने अफसर की कमर से रिवॉल्वर की नाल लगा दी। वो बोला, ये क्या हरकत है? हमें हुक्म मिला है कि हम तुम्हारे साथ ताउन करें, मगर तुम कानून को हाथ में ले रही हो। वो बोली, अगर हम ज़रा भी कमज़ोर पड़ते तो तुम्हारा कानून हमें ले डूबता। मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। मैंने उस 12वें शख्स को देख लिया। वो कुछ लोगों के दरमियान क्लब से बाहर जा रहा था। मैंने अफसर के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल कर उसका निशाना लिया, फिर गोली चला दी। वो चलकर ज़मीन पर गिरा। फिर मैंने करीब पहुंचकर पूछा, क्या टेलीपैथी जानते हो? उसके दिमाग ने बताया, वो चौथा टेलीपैथी जानने वाला शख्स है। बाकी 3 अपने कॉटेजेस और होटल के कमरों में हैं। मैंने उस चौथे को गोली मार दी। फिर सोनिया से कहा, अभी 3 ख्याल ख्वानी करने वाले बाकी हैं। सोनिया ने मुझे 3 तस्वीर दी। मैंने एक की आंख में झांक कर देखा। वो होटल के एक कमरे में जख्मी पड़ा हुआ था। एक डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वो टेलीपैथी जानता है और जनरल के हुक्म से यहाँ आया है। जनरल ने उन 4 ख्याल ख्वानी करने वालों को वार्निंग दी थी कि नाकाम वापस ना आए वरना उनसे टेलीपैथी का इल्म छीन लिया जाएगा। मैंने कहा, टेलीपैथी सीख लेने से कामयाबी हासिल नहीं होती। किसी के हाथ में राइफल हो और वो उसे चलाना ना जानता हो तो अनाड़ीपन से अपनों को ही गोली मार देता है। उस जख्मी के दिमाग में दूसरा शख्स बोलने लगा, फरहाद, ये लोग अनाड़ी नहीं हैं, ये ज़बरदस्त प्लान मेकर्स और गोरिल्ला फाइटर हैं। ये और बात है कि तुम्हारा मुकद्दर साथ देता है। मेरा मशवरा है हमारे बाकी 3 टेलीपैथी जानने वालों को ना मारो। 3 मरेंगे तो 300 पैदा हो जाएंगे। मैंने कहा, मौत का फरिश्ता माओ से ये नहीं कहता कि वो बच्चे पैदा ना करें। तुम भी पैदा करो। तुम्हारा काम पैदा करना है, फरिश्ते का काम मारना है। मैं कोशिश करूंगा तुम उन्हें नुकसान ना पहुंचा सको। मैंने हंसते हुए कहा, जॉन लम्बोडा, टेलीपैथी के मैदान में अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। लो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं उस जख्मी के दिमाग से निकल आया। जॉन लम्बोडा इंतज़ार कर रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने दूसरी तस्वीर की आंख में झांक कर देखा। उसके दिमाग में पहुंचा। फिर कुछ कहे सुने बगैर उसकी सांस रोक दी। सुनने और समझने के लिए कुछ नहीं रहा था। ये साबित हो चुका था कि वो टेलीपैथी जानता है और हमारा जानी दुश्मन है। वो जानी दुश्मन जान से चला गया। मैं तीसरी तस्वीर को देखकर तीसरे के दिमाग में आया। वहाँ जॉन लम्बोडा उसके दिमाग में कब्जा जमाए बैठा था। मैं वापस पहले वाले जख्मी के अंदर आया, फिर उसकी सांस रोक दी। थोड़ी देर बाद तीसरे के पास आया और फिर बोला, जॉन लम्बोडा, तुम कब तक इस अंडे पर मुर्गी की तरह बैठे रहोगे? वो बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सिर्फ नाम नहीं जानता, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। अभी तो ये फैसला करो, इसे बचाओगे या उसे जो होटल में पड़ा है। देखो, अपने रवैये में लचक पैदा करो। मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं सपेरा होता तो दोस्ती कर लेता। अभी 3 तक गिन रहा हूँ। 3 के बाद भी तुम यहाँ रहोगे तो मैं होटल वाले को शिकार करके चला जाऊँगा। 1, 2, 3। मैं 3 कहकर चुप हो गया। वो गुस्से से गालियाँ देते हुए बोला, मैं तुमसे निमट लूँगा, तुम्हें अपने मकसद में। वो बोलते बोलते चुप हो गया। मैंने तीसरे के दिमाग को जब अपने कब्जे में लिया तो पता चला जॉन लम्बोडा होटल वाले को बचाने गया है। मैंने उसकी सांस रोक दी। वो तड़पने लगा। उधर लम्बोडा होटल वाले के मुर्दा दिमाग से झुंझलाकर वापस आया होगा और उसे तीसरे के भी दिमाग में जगह नहीं मिल रही होगी, क्योंकि उसकी तो मैंने सांस रोकी हुई थी। मैं थोड़ी देर बाद पुलिस के आला अफसर के दिमाग में गया। वहाँ लम्बोडा बोल रहा था,
تمہاری حکومت نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے گا، لیکن تم لوگوں نے درپردہ فرحاد کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے تمام اہم افراد کو مار ڈالا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، سوری، ہم نے سونیا اور فرحاد کا ساتھ نہیں دیا ہے، البتہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ فرانس ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، جان لمبوڈا، میں نے کہا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے میدان میں تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پہلا سبق میں نے سکھا دیا ہے، جاؤ اسے اچھی طرح پڑھتے اور یاد کرتے رہو۔ میں دماغی طور پر سونیا کے پاس حاضر ہو گیا۔ جان لمبوڈا کوئی معمولی شخص نہیں تھا، مانا کہ ایک بار ہم سے مات کھا گیا، لیکن لمبوڈا جیسے ہی شاہ زوروں کے لیے کہا گیا ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ مجھ کو اور سونیا کو بھی بعض حالات میں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ ہمیشہ کامیاب ہونے والے اندازے کی ایک ذرا سی غلطی سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جان لمبوڈا کا فوجی ریکارڈ یہ تھا کہ وہ تیزی سے سوچتا ہے، تیزی سے عمل کرتا ہے، دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جس دشمن کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس کے ریکارڈ میں صرف ایک جگہ ناکامی لکھی ہوئی تھی، دوسری بار ہمارے مقابلے میں ناکام ہو کر گیا تھا، ورنہ کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی تھی، خصوصاً ایسے وقت جب وہ زخمی شیر کی طرح پلٹ کر حملے کرتا تھا۔ اس ریکارڈ کے مطابق آئندہ اس کا حملہ ہمارے لیے تشویشناک ہو سکتا تھا۔ وہ کن پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر منصوبے بناتا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے تھے، جو بعد میں معلوم ہوا اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ جنرل کو جان لمبوڈا پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اس نے جنرل کا عہدہ سنبھالتے ہی لمبوڈا کو اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا۔ اس کی وفاداری پر کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی کا علم دیا گیا تھا۔ جان لمبوڈا نے جنرل سے کہا، تمہارے لیے سب سے خطرناک مرینا ہے، اسے قابو میں کرنا ضروری ہے۔ جنرل نے کہا، میں سمجھتا ہوں، وہ سونیا سے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس چھین کر لا رہی ہے، جبکہ یہ بات مضحکہ خیز ہے۔ مرینا فرحاد کی فیملی سے متاثر ہو گئی ہے اور ہمیں کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک الگ ٹیم بنا رہی ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں ایک دوسری ٹیم تشکیل کرنی چاہیے۔ جان لمبوڈا نے برین ماسٹر اور بلیک سیکرٹ جیسے عہدوں کو قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے مطابق 5 افراد کو ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر انہیں ٹیلی پیتھی کا علم دیا گیا، لیکن مشین کے ذریعے ان 5 کے دماغوں میں یہ بات نقش کر دی گئی کہ وہ اپنے اندر جان لمبوڈا کی سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ جان لمبوڈا کی ایسی ہی چالاکیوں سے جنرل خوش رہتا تھا۔ اس نے ٹیلی پیتھی کا شعبہ برین ماسٹر اور 4 بلیک سیکرٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کی طرف سے فریب دہی کا اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ ان 5 کے دماغ جان لمبوڈا کی مٹھی میں تھے۔ وہ اور جنرل خاموش تماشائی بن کر مرینا اور 5 بلیک سیکرٹس اور برین ماسٹر کی تکرار دیکھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کر رہے تھے۔ جان لمبوڈا نے دیکھا کہ مرینا کا پلڑا بھاری ہے اور بلیک سیکرٹ ناکارہ ہیں، تو انہوں نے 5 کو کال کوٹھڑی میں بھیج دیا۔ وہ مرینا پر قابو نہ پا سکے۔ یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی فرحاد کی فیملی کے مضبوط قلعے میں پناہ لے رہی ہے۔ پھر یہ بات چھپی نہ رہی کہ جنرل کا ایک خاص خیال خوانی کرنے والا ہے۔ لمبوڈا نے جنرل سے کہا، فرحاد اور مرینا مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کریں گے اور کسی نہ کسی دن مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، لہٰذا دانش مندی یہ ہے کہ میں خود انہیں اپنے قریب آنے کا موقع دوں اور ان سے انجان بن کر قریب سے انہیں دیکھتا اور سمجھتا رہوں۔ انہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی میں ان کی شاہ رگ پکڑنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ اس پلاننگ کے پیش نظر نئے سپر ماسٹر کو الو بنایا گیا۔ اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ جنرل نے چند ریٹائرڈ فوجیوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ جب سے لمبوڈا جنرل کے پاس آیا تھا تب سے وہ ایسی چالیں چل رہا تھا کہ جنرل کو کہیں سے کوئی اندیشہ نہیں رہتا تھا۔ اسے سپر ماسٹر سے بھی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اسے سپر ماسٹر کے عہدے پر لانے سے پہلے ایک بار اسے دھوکے سے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا گیا تھا، اور لمبوڈا نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ کبھی لمبوڈا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ جب مرینا نے سپر ماسٹر کو ٹریپ کیا اور تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنایا تو لمبوڈا چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیچارہ سپر ماسٹر نہیں جانتا تھا کہ کال کوٹھڑی سے 5 قیدی رہا کیے جائیں گے۔ لمبوڈا نے جو باتیں نقش کرائی تھیں وہی وہ مرینا سے کہہ گیا۔ بعد میں مرینا کو مایوسی ہوئی، 5 قیدی رہا کیے گئے تھے مگر وہ ڈمی تھے۔ دوسری بار مرینا نے سپر ماسٹر کے چور خیالات سے معلوم کیا ایسے کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جن کی خدمات جنرل نے حاصل کی ہیں۔ سپر ماسٹر کے چور خیالات نے 7 فوجیوں کے نام، پتے اور فون نمبر بتا دیے۔
मैंने भी मरीना की सोच का लहजा इख्तियार करके बिल्कुल यही मालूमात हासिल की थीं, लेकिन लेम्बोडा को मेरे मुतल्लिक कुछ मालूम ना हो सका, क्योंकि जब मैं मालूमात हासिल कर रहा था उस वक्त लेम्बोडा सुपरमास्टर के दिमाग में नहीं था, और मुझे ये मालूम नहीं था कि मरीना भी मेरे ही तरीक़ाकार के मुताबिक जनरल के ख़ास टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना चाहती है। यूं देखा जाए तो जॉन लेम्बोडा अपनी जहानत से सुपरमास्टर को, मरीना को और मुझे अपने मंसूबे की उंगलियों पर नचा रहा था, और हम बेखबरी में नाच रहे थे। मैंने पारस को जॉन लेम्बोडा की निगरानी पर मामूर किया था, जबकि लेम्बोडा नज़र नहीं आया था। एक बार उसकी बीवी कार में गई थी, दूसरी बार एक 12 बरस का लड़का कहीं साइकिल पर गया था। पारस ने उनका ताकुब नहीं किया था, जबकि लेम्बोडा यही देखना चाहता था कि मरीना अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ उसकी बीवी बच्चों का ताकुब कर रही है या नहीं। लेम्बोडा का मंसूबा बड़ा ही जामे और ठोस था। मरीना के टेलीपैथी जानने वाले मिकी मैथ्यू और केनी पॉल ताकुब के लिए चल पड़े थे। केनी पॉल लेम्बोडा की बीवी का पीछा कर रहा था और मिकी मैथ्यू 12 बरस के लड़के से दोस्ती करता हुआ पाया गया था। लेम्बोडा अपनी बीवी बच्चों के दिमागों में पहुंचकर ये हरकत देख रहा था, लेकिन उसने अपनी बेटी कैनोवेना के दिमाग से कुछ मालूम नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि पारस ने कैनोवेना के करीब जाने की हमाकत नहीं की थी। जो कोयले की कान के करीब से गुजरता है उसके मुंह पर कालक जरूर लगती है। हवा का झोंका कोयले की स्याही उड़ाकर चेहरे तक पहुंचा देता है। चूंकि मेरा बेटा कोयले की कान से नहीं गुजरा था, इसलिए मैं सिर्फ मरीना का जिक्र करूंगा। उसके मुंह पर नाकामी की कालक लग गई थी। यह सरासर हमाकत थी कि केनी पॉल लेम्बोडा की बीवी के करीब गया था और उसे मुखातिब किया था ताकि मरीना उसकी बीवी की आवाज़ सुन सके। इसी तरह मिकी मैथ्यू ने 12 बरस के लड़के की आवाज़ मरीना को सुनाई थी। दूसरी तरफ जनरल के जासूस उनकी ताक में थे। उन्होंने केनी पॉल और मिकी मैथ्यू की कारों के पीछे डिटेक्टिव आला लगा दिया। उस आले ने निशानदही करते हुए सुराग रिसानों को उनकी रिहाइश गाह तक पहुंचा दिया। ये जॉन लेम्बोडा की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अक्सर लोग कामयाबी की खुशी में हमाकतें कर जाते हैं, लेकिन लेम्बोडा ने तहम्मुल से काम लिया। मिकी मैथ्यू और केनी पॉल को नहीं छेड़ा, उन्हें आज़ाद रखा ताकि मरीना के आइंदा के इक़दामात को देख सके। फिर यह हुआ कि मरीना ने अपने मातहतों की ड्यूटी बदल दी। केनी पॉल की जगह शल्पा आ गई और मिकी मैथ्यू की जगह जूडी नॉर्मन ने ले ली। जूडी नॉर्मन की वाइफ जोरा जोरी जल्द ही माँ बनने वाली थी, इसलिए हॉस्पिटल में थी। आधी रात के बाद शल्पा ने लेम्बोडा की बीवी के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके ज़रिए बेडरूम के दरवाजे पर आई। लेम्बोडा अलहदा बेडरूम में था। बीवी ने दस्तक देकर कहा, मेरे पेट में सख्त तकलीफ़ है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेम्बोडा ने बंद दरवाजे के पीछे से कहा, क्या मुसीबत है? चलो कार में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसकी वाइफ पोर्च में आकर कार में बैठ गई। दूसरी तरफ मरीना ने जूडी नॉर्मन से कहा, 12 बरस के लड़के को अगवा करो ताकि लेम्बोडा बेबस हो जाए। जूडी नॉर्मन ने हुक्म की तामील की। जब लेम्बोडा अपनी वाइफ के साथ कार में बैठकर डॉक्टर की तरफ रवाना हुआ तो उसने उसके बेटे को नींद की हालत में बिस्तर से उठाया, उसे चलाता हुआ कोठी के बाहर लाया, फिर अपनी कार में बिठाकर उसे ले जाने लगा। ऐसे ही वक्त आगे पीछे से पुलिस की गाड़ियों ने रास्ता रोक लिया। जूडी नॉर्मन को गन पॉइंट पर गिरफ्तार करते ही एक इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर दिया गया ताकि मरीना उसके बचाव का कोई रास्ता ना निकाल सके। लेम्बोडा की वाइफ जिस कार में डॉक्टर के पास जा रही थी, उसे एक रास्ते पर चारों तरफ से शल्पा और उसके आदमियों ने रोक लिया। फिर शल्पा ने कहा, जॉन लेम्बोडा, गाड़ी से बाहर आ जाओ, तुमने जनरल की बड़ी खिदमत कर ली, अब हमारी खिदमत करोगे। गाड़ी से बाहर आने वाले ने कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं लेम्बोडा नहीं हूं, मगर हाँ, लेम्बोडा मेरे दिमाग में मौजूद है। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगी, मेरे दिमाग के अंदर रहने वाले को पकड़ नहीं सकोगी। शल्पा ने चौंक कर देखा। उस शाहराह पर चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं। वो चारों तरफ से घिर गई थी। किसी समत से भागने का रास्ता ना रहा था। एक अफसर इंजेक्शन लगाने की सिरिंज हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में मरीना कह रही थी, इस सिरिंज से बचने की कोशिश करो, मुझे सिरिंज वाले की आवाज़ सुनाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शिल्पा ने पीछे हटते हुए उस अफसर से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे सिपाहियों ने उसे पीछे हटने से रोक दिया, उसे जकड़ लिया। वो अफसर जैसे गूंगा बहरा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से सिरिंज की सुई उसके बाजू में पेवस्त कर दी। उसके बाद शिल्पा अपने आप से गाफिल होती चली गई। मरीना ने पहले जूडी नॉर्मन को बेहोश होते देखा, फिर शिल्पा भी गिरफ्तार कर ली गई। इस तरह समझ में आ गया कि जॉन लेम्बोडा कोई तरने वाला नहीं है, वो जल्द ही उसे भी निगल लेगा। खतरे का यकीन होते ही वो ख्याल ख्वानी की छलांगे लगाती हुई मिकी मैथ्यू और केनी पॉल के दिमागों में आई।
उनकी दिमागी हालत नहायत ही नाजुक थी, यानी वो बेहोश थे और मरीना उनके दिमागों से कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। वैसे ये मालूम हो गया कि वो बाजी हार गई है। एक ही रात में 4 टेलीपैथी जानने वाले उसके हाथों से निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान था। 4 टेलीपैथी जानने वालों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और उनमें जूडी नॉर्मन उसके लिए बहुत अहम था। उसने इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं उठाया था, कभी इतनी बड़ी शिकस्त का सामना नहीं किया था, और तौहीन की बात यह थी कि किसी ने आज तक उसे इस तरह उल्लू नहीं बनाया था। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल डूब रहा था। इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। उसे अपने टेलीपैथी जानने वाले बहुत अजीज थे। वो उनसे वफादार कुत्तों की तरह प्यार करती थी। जोरा जोरी माँ बनने वाली थी, उसका खास ख्याल रखती थी। जोरा जोरी के बारे में सोचते ही वो चौंक गई। जॉन लैम्बोर्डा ने जूडी नॉर्मन को गिरफ्तार करने के बाद जोरा जोरी के मुतल्लिक ज़रूर मालूम किया होगा। नॉर्मन के दिमाग को कमज़ोर बनाकर उसके चोर ख्यालात के मुतल्लिक ज़रूर मालूम किया होगा कि जोरा जोरी एक बहुत महंगे मैटरनिटी होम में है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जोरा जोरी के पास पहुंची। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। वो बेहोश थी। बेहोशी बता रही थी कि उसे भी अगवा किया गया है। गोया वो एक ही झटके में 5 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो गई थी। वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बिस्तर पर आकर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। पारस उसे प्यार से चारों शाने चित करता था। जनरल ने हकारत से मुंह के बल गिरा दिया था। अब उसे अकेलेपन का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अक्सर ऐसे नुकसानात होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, नुकसान पूरा नहीं होता, लेकिन रोने और आंसू दिखाने के लिए कोई तो अपना हो। पारस होता तो उसके गले लगकर रोती और दिल का गुबार निकाल लेती। औरत ऐसी भी नंगी ना हो कि आंसू पोंछने के लिए अपना दामन भी ना मिले। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। वो दूसरी बार आकर बोली, पारस मैं रो रही हूँ, रोती रहो, गेट लॉस्ट। उसने फिर सांस रोक ली। वो झुंझलाकर तकिए को मारने और नोचने खसोटने लगी। सदमा था, शिकस्त खाने का गम था, पारस की बेरुखी का, गुस्सा था अपनी तन्हाई का और बेयारो मददगारी का। वो फिर पारस के पास आई। उसने फिर सांस रोककर भगा दिया। उसे सहारे की ज़रूरत थी। सहारे के बगैर संभल नहीं सकती थी। वो गुस्से के बावजूद समझ रही थी कि उसने पहले ही मजबूत सहारों को तोड़ दिया था। कभी ठोकर खाने और तन्हा रह जाने वाली बात नहीं सोची थी। आखिर वो सोनिया के पास गई। उसके दिमाग में पहुंचते ही रोने लगी। सोनिया ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो हिचकियां और सिसकियां लेते हुए बोली, मैं बुरी तरह टूट गई हूँ। जनरल के ख्याल ख्वानी करने वाले जॉन लैम्बोर्डा ने मेरे 5 ख्याल ख्वानी करने वाले छीन लिए हैं। क्या तुम नाकामी के वक्त रोती हो? मैं कभी नहीं रोती, लेकिन पारस मुझे रुला रहा है। मैं उसके पास जाती हूँ, वो सांस रोक लेता है। अपना ही मर्द ऐसे वक्त मुंह मोड़ ले तो क्या रोना नहीं आएगा? मैं समझ गई, उसे भी समझा देती हूँ। मैं सो रहा था। सोनिया ने मुझे जगाया, फिर कहा, मरीना मेरे पास आई है। लैम्बोर्डा ने उसे 5 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम कर दिया है। ऐसे वक्त पारस को सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो मरीना से बेरुखी दिखा रहा है। मैंने कहा, मरीना को समझने दो, वह ऐसा क्यों कर रहा है। तुम मुझ पर अंधा एतमाद करती हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को किसी न किसी पर पूरी तरह भरोसा करना पड़ता है। सोनिया ने कहा, सुन रही हो मरीना, बात सिर्फ पारस की नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में हम औरतों के लिए कोई भी एक मर्द होता है जिस पर हर हाल में भरोसा करना होता है। भरोसे के बगैर इस दवाजी जिंदगी नहीं गुजरती। मामा, मुझे गलती का एहसास हो गया है। आइंदा मैं पारस को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छी बात है, सोनिया ने मुझसे कहा। पारस को समझाओ कि वो हमारी बेटी के आंसू पोंछे। मैं पारस के पास आया। उसने सांस रोक ली। मैं दूसरी बार उसके पास आया। वो गुस्से से बोला, तुम 1000 बार आओगी, मैं 1000 बार भगाऊंगा। जाओ और अपने गिरेबान में। मैं उसकी बात काट कर बोला, मैं हूँ, गुस्सा थूक दो। ओह पापा, वो गधी मुझे परेशान कर रही है। हम गधे परेशान होने के लिए ही गधी पालते हैं। जब पाल ही लिया है तो झुंझलाहट क्यों है? देखिए, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि वो खुदगर्ज है, मक्कार है, अपने मतलब के लिए दोस्ती कर रही है। तुम्हारी ये राय पहले दुरुस्त थी, अभी उसे एक ज़बरदस्त ठोकर लगी है। जॉन लैम्बोर्डा ने उसके 5 टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए हैं। वो बुरी तरह टूट गई है, बिखर गई है। उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है।
मैं उसे भेज रहा हूं, उसका दिल ना तोड़ना। मैंने सोनिया के पास हाजिर होकर पूछा, मरीना है? मेरे पास है, उसे पारस के पास जाने को कहो। वो फौरन ही सोनिया के दिमाग से निकली और पारस के पास आ गई। फिर बोली, मैं रो रही थी, तुम्हें मुझ पर मोहब्बत नहीं आई? अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर रोगी तो मोहब्बत नहीं आएगी, हंसी आएगी। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, मुझे गलती का एहसास हो गया है। चलो अच्छा है, मैं इतना बड़ा नुकसान उठाकर तन्हा नहीं रह सकूंगी। मुझे अपने पास बुलाओ, मुझसे कहो, मेरी जान मेरे बाजुओं में आ जाओ। अभी मेरे लिए प्यार के बोल ज़रूरी हैं। तुम अभी मेरे पास आकर दूसरी गलती करोगी। तुम्हारे 5 मातहत इसी शहर में पकड़े गए हैं, हम भी इसी शहर में हैं। लेम्बोडा बहुत दूर तक सोचता है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।